सो हेलो एवरीवन, मैं आप लोग के पास आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जहां पे आप बेसिकली मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं और मैंने प्रॉमिस भी किया था कुछ दिन पहले कि जो फॉरेन एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मे बी मेडिसिन, मे बी इंजीनियरिंग, मे बी टेक्नोलॉजी या फिर सिंपल एजुकेशन में, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, बेटर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे एक्सपर्ट से बात करना चाह रहा था कि जो इस फील्ड को जानते हो, बिकॉज मुझे कुछ पर्टिकुलरली आइडिया नहीं है। बट स्टूडेंट्स का डिमांड था, तो मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कुछ स्टूडेंट से भी आपकी बात कराऊंगा। वो चेन में धीरे धीरे लेके आऊंगा, लेकिन आज मैं एक ऐसे एक्सपर्ट को लेके आया हूँ जो परहैप्स सर्टिफाइड एंड परहैप्स वन ही इज ओनली वन सर्टिफाइड ट्रेनर या काउंसलर है, आप कह सकते हो, जो फॉरेन एजुकेशन में के लिए आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। और सर के पास काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इनसे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई नहीं हो सकता। ये वीडियो मैं कोलाबरेशन में बना रहा हूँ स्टडी यूनिफीस के साथ। तो आप मिस्टर संजय हैं मेरे साथ, एंड ही विल बी टेलिंग यू अबाउट द फॉरेन एजुकेशन, यूरोप, इंग्लैंड या फिर एशिया या यूरेशिया के बारे में। तो मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दें, और प्लीज़ बच्चों को बताइए कि क्या पर्टिकुलरली हम लोग फॉरेन एजुकेशन क्या है, किनको जाना चाहिए। एक ब्रीफ रिव्यू में चाहूँगा आपसे। फॉरेन एजुकेशन कोई नई चीज नहीं है in the educational realm in India. A lot of us know that the very first international students from India were actually eminent people like Mohandas Karamchand Gandhi, Bapu, and Jawaharlal Nehru. So this is nothing new actually. Another factor is that India's input in the international education market is growing year by year. In fact, India is the country that sends the most students to study in the United States among all the countries in the world. Uh, there are many centers in India that are considered hubs for international education. In the north, you have Delhi. In the south, you have cities like Chennai, Bangalore, Hyderabad. In the west, you have cities like Mumbai. These are all very vibrant centers of international education with a very large number of students actually going abroad to study. Going abroad to study is a very different experience from studying in your home country, India. And it's a good idea to know about it comprehensively, completely, before you actually take the plunge to study abroad. थैंक यू संजय सर, ये आपने ब्रीफ रिव्यू दे दिया है। बेसिकली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो खास तौर पे मेडिसिन ओरिएंटेड हैं। मेरे इस चैनल पे जो बच्चे हैं वो एमबीबीएस में अपना करियर सीख करना चाहते हैं, कुछ मेडिसिन में, कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए या एलाइड कोर्सेज हो गए। तो इसके ऑप्शंस कैसे हैं बाहर के लिए? मेडिसिन और हेल्थ साइंसेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं बहुत सारे देशों में. Let's start with the USA, which is the number one international education destination in the world. सबसे ज़्यादा international students अमेरिका ही जाते हैं पढ़ने के लिए. So this is how medical education works in the United States. There is no MBBS program. Instead, you have a 4-year MD program. But people who've passed grade 12 in India will not get automatic entry into the MD program in the United States. First, you will have to do a pre-med course. The pre-med course is for an average duration of 2 years. Other alternatives are you can join a Bachelor of Science in a related discipline like anatomy, physiology, biochemistry, etc. And after 2 years of study in the Bachelor's of Science, you're eligible to start your MD. 4 years later, you have actually graduated as a doctor, filled in your one full year of residency, and then you can actually start practicing medicine in the United States or come back to India, give your licensure exams here, and start practicing here. Uh, it's a very, very expensive major to study in the United States. On average, you will be paying something like $30,000 per year just tuition. So that would be at today's exchange rate something like 25 lakhs per year just for tuition. That is not counting your living costs. However,
A lot of students pay huge sums by way of donations in India to get into management quota seats. Uh, in this regard, if you're paying like 1.5 CR or 2 point something CR in India for a donation, a better option would be actually to consider the MD in America. In UK also, they do not have an MBBS. That degree is not very common. Instead of MBBS, they have a degree called MBCHB. It has, relatively speaking, the same structure as the MBBS in India. 5 years of medical studies plus 1 year of residency, and then you are basically qualified to practice medicine in the UK. Or, like I said earlier, you can come back to India, give your licensure exams, and start practicing here. In other countries like Canada, Australia, New Zealand, the English speaking countries, there are similar options. So there are plenty of options available abroad at roughly the same costs if you're paying a really big donation to get into an Indian university. दैट्स रियली फाइन बिकॉज हम लोग एक यूएस को टैबू समझते हैं कि यार वहाँ जाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। मुझे पहली बार, इनफैक्ट मैं इतने सालों से मेडिकल एजुकेशन देख रहा हूँ, मुझे पहली बार पता चला कि 2 इयर्स प्लस 4 इयर्स में आप वहाँ एमडी कर सकते हैं, अगर फ्रेंकली अगर आप क्लियर करते हुए रहते हैं। और जो आपने फीस बताई, काफ़ी पेरेंट्स यहाँ पे विलिंग होते हैं उतनी फीस देने के लिए इफ़ दे गेट सम क्वालिटी एजुकेशन। और यूएस की तो बात ही और है। सिमिलरली आपने यूके का बोला, वो भी बच्चों को कम पता था। बच्चों को ये जो रसिया एंड यूक्रेन, ये सारे किर्गिस्तान, ये वाला एरिया पता है। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करें? अगर मान लीजिए हम पेइंग है, हम पे कर सकते हैं हमारा कोई बच्चा, तो वो यूएस और यूके क्यों जाए, यहाँ क्यों ना जाए? सो कैन यू डिफरेंशिएट इट? Right. Firstly, the US has the best higher education system in the या world, या as ranked by global indicators like ARWU or QS, Corticelli Simmons. UK is also among the top 5 best higher education systems in the world. So, quality wise, that simply does not compare to countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan, or even Russia. Secondly, the focus of education, not just medical education, but the whole of higher education, is very different in countries like the UK and the US. Pedagogically, that is, with regard to teaching methodology, they follow a system called inquiry based learning. The focus is not on assimilating facts taught in lectures or in lab periods, but in improving the critical reasoning and the problem solving skills of students within the context of the education that they're getting. These are very, very crucial skills which are conspicuous by their absence in India. In fact, in India, we used to be part of PISA till a few years back. PISA tests are based mostly on critical thinking and problem solving. But because Indian students were performing so poorly at PISA tests, the Indian government actually opted out, stating that these tests are biased against Indian students. Sorry. So, firstly, the overall quality of the higher education is very different. Secondly, the focus of learning is very different. And thirdly, the kind of exposure that you will get studying medicine, for example, in the United States or the UK, is completely different to what you will get in India, what you will get in the former Soviet republics or in Russia itself. You will be taught by people who are eminent personalities in their own fields, who are not just teaching but also involved in the field too, who have a very credible research record with plenty of research publications and citations. So, those are the kind of people that will be teaching you in these advanced countries. Fourthly, you get exposure to a very advanced healthcare system. Yes. The healthcare system in these few countries that I talked about, in North America, Europe, and in Australasia, is much more advanced than most healthcare systems in Asia. So these are the main differentiators between the usual market, that is, let's say, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russia, and some other republics, and these advanced countries. तो संजय सर, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके पास एक्सपोजर है, मुझे अच्छा भी लग रहा है। इनफैक्ट मैंने इतना इमेजिन नहीं किया था, इतना डीप आप जानते हैं। एक यूएस को लेके
डर रहता है लोगों में, बिकॉज यहाँ वहाँ का वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और स्टूडेंट पहली बात तो यूएस को कट कर देते, इवन इफ दे आर विलिंग टू पे, दे आर गुड, हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन हैंड कि उन्हें खर्च करना है। इनफैक्ट आपकी बातों से मुझे याद आया, एक देहरादून से, मैं देहरादून से हूँ, यहाँ पे एक फेमस डॉक्टर है, नाम तो नहीं ले सकता उनका, उनका बेटा यहाँ प्राइवेट कॉलेज में, जो यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे एंटर हुआ, और उसका यूएस में हो गया। यहाँ पे उन्होंने 4 साल, 4.5 साल की पूरी फी पे की, बिकॉज उन्होंने ऐसे एग्जिट नहीं दिया, बिकॉज वो उनकी मार्कशीट वगैरह रख लेते हैं। और फिर वो यूएस जाके कर रहा है यही एमडी प्रिपरेशन, अभी वो शायद फाइनल ईयर में होगा इस टाइम। और मुझसे भी मैंने पूछा था कि आप यूएस क्यों भेजना चाह रहे हैं, इतना पैसा आपने बर्बाद किया, ही इज वेल ऑफ, बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। तो उन्होंने कहा यार देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन यूएस एंड इंडिया, ये वहां से करके आएगा तो ये शायद रूल करेगा या वहीं सेटल हो जाए। तो आपकी बातों से मुझे लगा कि शायद यही रीजन रहा होगा उनका। बट एक क्वेश्चन है सर, एक तो वीजा को लेके, तो पहले आप वीजा का आंसर कर दीजिए, फिर अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो। जी जी। Right, getting a visa to the US is not impossible. इस वर्ड के साथ तो मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ. It is just different from other countries, as well as staying back in your own country and studying. You see, visa issuances in the US depend on several things. Firstly, there is the law. The law that governs all visa issuances in the non-immigrant category is the INA, Immigration and Naturalization Act. इसका bedrock है a clause called 214B, जो कहता है कि अगर वीजा एप्लीकेशन के टाइम if the visa officer thinks that your purpose for applying for a student visa is actually to immigrate, then by law the visa officer cannot issue your visa. So that is the bedrock of all decisions. Secondly, they are looking for 5 very simple things during a visa application. Number 1 is ability to succeed academically. Okay. आप में वो पोटेंशियल है कि नहीं कि आप एकेडमिकली सक्सेसफुल होंगे एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में. ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करता है आपके यहाँ के क्लास 12 के रिजल्ट्स, प्लस आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है आईएलटीएस यूएस अप्लाई करने के लिए, उसके रिजल्ट्स, प्लस आपने जो रीजनिंग टेस्ट दिया है लाइक एसएटी या एसीटी, उसके रिजल्ट्स में अगर आपके पास एक अच्छी परसेंटेज है इंडिया से क्लास 12 में, एक अच्छे बोर्ड से, आप आईएलटीएस में अच्छी रिजल्ट ला सकते हैं, आप एसएटीज में अच्छी रिजल्ट ला सकते हैं, then it becomes very easy to demonstrate कि आपके पास ability to succeed academically है. दूसरी बात वो देखते हैं इंटेंट, आपके इंटेंशंस क्या हैं. If your intentions are such that the visa officer concludes that you're applying for a student visa only to stay back in the US, or your intentions are anything other than engaging in full-time studies, then you will not get a visa. लेकिन बात यह है, for those who have ability to succeed academically, by default उनका intention prove हो जाता है. The third thing they look at is means. Means यानी कि financial means to be able to pay for everything. As a student of medicine in the United States, you will not have time to work part-time. Workload बहुत ही heavy होता है, just like India. So you will not have recourse to any kind of part-time work. So the big question is, can your sponsor pay for everything, that is tuition and living expenses? Tuition, like I said a little while earlier, is an average of $30,000 to $35,000 every year. Living costs are basically $10,000 to $15,000 per year. So can your sponsor afford to pay, let's say, 35 to 40,000 USD, which is something like 32 to 34 lakh Indian rupees every year? So that is question number 2, right? The next thing that they look at is ties. India में आपकी ties हैं कि नहीं? Ties are mainly family ties. आपकी पूरी family अगर इंडिया में है, you should not have a problem with this. Secondarily, आपकी community ties क्या हैं? आपकी economic ties क्या हैं? Economic ties जैसे your parents own land here that you will one day inherit.
or your parents own a source of income, a business, let's say, that you will one day inherit. So ये भी देखते हैं, और सबसे आखिर में देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. So ये 5 चीजें हैं. फिर से कहता हूं मैं, firstly intent, ability to succeed academically, ties, means to be able to pay for everything, and English language proficiency. अगर ये पांचों चीज आपके पास है तो you can apply for a F1 visa to study in the United States definitely, and you will also get through. Okay. And what about इनके पास पैसे नहीं है इतने? Well, there are plenty of options as far as medical education is concerned. अब कोई फैमिली अगर हो यूएस में अफोर्ड नहीं कर सकती है, या इंडिया में भी वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का डोनेशन देने की क्षमता नहीं रखती है, तो उनके लिए बहुत रीजनेबल ऑप्शंस हैं. कई सारी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, जैसे कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, लिथुआनिया, लैटविया, रशिया भी है, जहाँ पे बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में बच्चा एमबीबीएस अपना कर सकता है. For example, an MBBS program in these countries is an average total expenditure over 6 years of 25 to 35 lakhs. So उसमें accommodation, travel वगैरह सब कुछ include होता है. काफी रीजनेबल. हाँ जी, तो आप उसमें complete MBBS 30 lakhs, 35 lakhs में आप complete MBBS भी complete कर सकते हो. ठीक है, so ये एक affordable option है. और देखा जाए तो बहुत सारे देश हैं जहां अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं. काफी ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैं, जैसे कि चेक रिपब्लिक हो गया, या पोलैंड हो गया, या ऑस्ट्रिया हो गया. उनमें भी काफी रीजनेबल ऑप्शंस हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए. हाँ, अगर आप इंडिया लौट के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको यहाँ का लाइसेंसर एग्जाम देके उसमें एक्सेल भी करना पड़ेगा. अच्छा सर, मैंने सुना है कि एक्सेल जो अभी यहाँ लाइसेंस एग्जाम है, एग्जिट एग्जाम कहते हैं जिसको, इसमें अभी परफॉर्मेंस डाउन होने की वजह जो मुझे कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने बताया कि ये सारे वो स्टूडेंट हैं जो 6 ईयर्स 7 ईयर्स बैक गए थे वहाँ पे, और उस टाइम नीट एग्जाम नहीं होता था जो क्वालिफाइंग है जी. उनका ये कहना है कि अब ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम वाले बच्चे जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज सर्टेन परसेंटेज टू क्वालिफाई नीट एग्जाम, उसके बाद ही वहाँ पे वैलिड होता है, तो वो बच्चे जब आएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे. अदरवाइज अभी जो फिलहाल एग्जिट एग्जाम का जो परसेंटेज चल रहा है वो काफी बच्चे फेल हो जा रहे हैं. 20-25 बच्चे ही पास कर पाते हैं 100 में से. तो इससे भी पेरेंट और बच्चों में डर होता है, तो इसमें क्या सच्चाई है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. पहले ये नीट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अभी क्या है, कोई भी एमबीबीएस कॉलेज चाहे सेंट्रल एशिया में हो या यूरोप में हो, नीट की 50% कट ऑफ जरूर मांगेंगे. yes. First and secondly, they will have a very comprehensive program containing even things like tropical medicine, जो पहले नहीं होता था इनके programs में. Thirdly, many universities जो इंडियन स्टूडेंट्स लेती हैं, वो एक्चुअली फर्स्ट ईयर से ही लाइसेंसर एग्जाम जो बच्चों को इंडिया में आके देना पड़ता है, फर्स्ट ईयर से ही उसका प्रिपरेशन चालू कर देती हैं, उसका अलग से क्लास लेती हैं. सो इसीलिए लास्ट से 4-5 years से सक्सेस रेशियो इन द लाइसेंसर एग्जाम्स इन इंडिया हैज गॉन अप टू ऑलमोस्ट लाइक 100%. ओके, गॉट इट. ठीक है संजय सर, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बिकॉज यू नो मुझे इतना ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए था नहीं, और बच्चों से मैं बोलूँगा नीचे गूगल सीट में दे रहा हूँ, आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं सीधे संजय सर तक पहुँचाऊँगा, इनकी टीम तक. ये आपको आंसर करेंगे वहाँ से, बिकॉज इनकी टीम आपने देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि ऑलमोस्ट ये एनसाइक्लोपीडिया हैं यू फॉरेन एजुकेशन के. तो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स एंड हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स इन एडवांस कंट्रीज? ये एक क्वेश्चन था मेरा. ये सबसे ग्लेरिंग डिफरेंस ये है कि इंडिया में आपको फॉर प्रॉफिट एजुकेशन प्रोवाइडर्स हर जगह मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे. जबकि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलेशिया में फॉर प्रॉफिट एजुकेशन इज बेसिकली not that common, not common at all. Most education is funded either by the government or by charitable and religious organizations. So
इससे क्या होता है, द फोकस ऑफ एजुकेशन इज नॉट एज कमर्शलाइज्ड अब्रॉड एज इट इज इन इंडिया. इंडिया। ये पहली बात है. सेकेंडली, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, the quality of exposure that you will get in an advanced country, up till now India is not able to compare. अगर आप किसी भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को देखेंगे, अमेरिका की ही बात करते हैं, तो वर्ल्ड टॉप 10 में आपको आधी यूनिवर्सिटीज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज मिलेंगी. एंड हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड टॉप 100 में है ही नहीं. इनफैक्ट 200 के बाद स्टार्ट होती है मोस्टली. The last I heard was 178 according to QS. That was IIT Mumbai. So वर्ल्ड रैंकिंग्स बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे मेट्रिक्स को लेके कैलकुलेट की जाती हैं. बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें बनाते हैं, जैसे टाइम्स ग्रुप बनाता है, क्वाड्रिचेली सिमंस बनाता है, फिर आपका बीजिंग यूनिवर्सिटीज बनाती हैं. सो दे आर नॉट एबल टू रैंक दैट हाई. और व्हेन यू स्टडी विद अ टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वो आपकी सीवी पे दिखता है. प्लस जो रेंज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स आपको मिलते हैं वो कहीं ज्यादा इनहैंस्ड होंगे. इनफैक्ट एलुमनाई बेस आपका तगड़ा हो जाता है. जी बिल्कुल. नेटवर्किंग, नेटवर्किंग नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलती है बाहर. यू कैन नेटवर्क ग्लोबली. ठीक है. एक्सपोजर आपको हर किस्म का एक्सपोजर मिलेगा. So that is another difference. Another difference is in the way education is imparted. बाहर की यूनिवर्सिटीज, particularly नॉर्थ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज का फोकस होता है ऑन क्रिएटिंग अ वेल राउंडेड इंडिविजुअल. हमारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, ये एक टनल विजन दे देती हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. सर दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बेसिकली. तो सर मेरा एक सेकंड क्वेश्चन था, हाउ डज STEM एजुकेशन डिफर अब्रॉड एट द अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल? STEM जनरली मैं बच्चों के लिए बता दूं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये इसको STEM एजुकेशन में बोल रहा हूँ. तो सर मैं जानना चाहूंगा ये कैसे डिफर कर रहा है इंडिया से वहाँ पे? राइट. The first thing is that universities abroad, like for instance universities in the United States and the UK, are required to update their syllabi, their course curriculum on a yearly basis. Okay. कई सारी डेवलपमेंट्स होती हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में particularly, and these developments are incorporated into curricula almost immediately. Okay. Then बहुत सारी इमर्जिंग फील्ड्स हैं स्टेम के अंदर. जैसे 10 साल पहले नैनो टेक्नोलॉजी. सो फॉरेन दैट बिकम्स अ मेजर. फॉर द लास्ट 10 years you can study a bachelor of science or a bachelor of engineering नैनो टेक्नोलॉजी. हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी देर से इंटीग्रेट होती है ये सब. तीसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे मैंने पहले कहा, यूनिवर्सिटीज अब्रॉड don't pigeonhole a university only, a student only into science, technology or engineering. वो पढ़ाते हैं some things like liberal arts core. Liberal arts core is a collection of courses in critical thinking, logic, communication, ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जो स्टूडेंट को एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बना देती हैं. सो STEM एजुकेशन अब्रॉड इज रियली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन इंडिया. मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन थे, आपने उसका आंसर वैसे ही कर दिया है. एक मेरे पास एक और क्वेश्चन था कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होती हैं, जैसे एशिया में तो आपको पता होगा रीजनल लैंग्वेज चल रही है उनकी, इज इट पॉसिबल टू स्टडी मेडिसिन इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज? आपने हालांकि कवर कर दिया है, अगर कुछ और ऐड करना चाहें इसमें. जी, पहले तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, बिल्कुल ही पॉसिबल है. दूसरी बात यह है कि आपके पास वहाँ पे इमिग्रेट करने की भी अपॉर्चुनिटीज होंगी. जैसे आप मान लीजिए अमेरिका में एक MD करते हैं, तो ऑन एन एवरेज it should not take you more than 3 years to get a green card to stay back in the USA. Okay. And you can actually become a naturalized citizen within 5 or 6 years. और हर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ये प्रोविजन है, क्योंकि उनकी हेल्थ केयर सिस्टम्स में ये बहुत ही शॉर्टफॉल ऑक्यूपेशन कहा जाता है. That is why you have so many doctors who've done their MBBS from India, but actually practicing in Canada or the USA or the UK. So immigration opportunities बहुत हैं. Plus आपकी जो
करियर ट्रेजेक्टरी होगी एंट्री लेवल पे 5 साल बाद, 10 साल, 20 साल बाद, that will be much, much greater than your career trajectory if you're staying back in India to study and practice medicine. दैट्स फाइन सर। एक दो क्वेश्चन मेरे पास और हैं, बिकॉज हमने ज़्यादातर अभी मेडिसिन की बात की। एक क्वेश्चन मेरा इंजीनियरिंग पे है, इज स्टडिंग इंजीनियरिंग अब्रॉड अ गुड ऑप्शन? ये बिकॉज इंजीनियर इंडिया को भी माना जाता है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। हाउ डज इट कंपेयर टू स्टडिंग इंजीनियरिंग अब्रॉड? राइट, देखिए मैंने इंडिया में बहुत काम किया है आईआईटी ग्रेजुएट्स के साथ, और पर्टिकुलरली मैंने साउथ इंडिया में ये ट्रेंड देखी है। प्लेसेस लाइक हैदराबाद, बेंगलुरु, और वेस्ट इंडिया में भी ये ट्रेंड देखी है कि बहुत सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स यहाँ से अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के Yes. इमीडिएटली बाद या तो यूएसए या कनाडा या यूके अप्लाई करते हैं, स्पेशली जो टेक मेजर्स हैं, आईटी मेजर्स या मैकेनिकल सिविल वाले, दे गो स्ट्रेट टू द यूएस। ये क्यों है? बिल्कुल जाते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। पहले ही मैंने कह रखा है, करियर ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है वहाँ पे, कहीं अच्छी है हमारे यहाँ से। The money you earn, the reputation you gather, the skills you acquire as a professional, कहीं ज़्यादा स्कोप है वहाँ पे। एंड जैसे मैंने पहले कहा, इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एक्चुअली इंजीनियरिंग में देखा जाए तो India is not even in the top 10 countries among education providers for engineering. Leading the pack is predictably the US. US में 1200 से ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। And getting a BE in America, for example, is a much more rigorous process than most non-IIT institutions that provide a BE or a BTech in India. So opportunities कहीं ज़्यादा हैं बाहर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, इसीलिए ये ट्रेंड्स हमें दिखाई देती हैं। एक सर मेरे पास आखिरी क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए वहाँ पे जाके। जी, तो क्या कुछ स्कॉलरशिप भी होता है, और होता है तो या इमीडिएटली होता है, या शुरू में नहीं हुआ बाद में अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है कि नहीं? इसके बारे में प्लीज बताइए। जी, अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड लीडर है स्कॉलरशिप में। ओके। ये इसलिए है क्योंकि इनके पास एक तो पब्लिक फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है एजुकेशन में, ये बिल्कुल प्रायोरिटाइज करते हैं इसे, और दूसरी एक इंडाउमेंट सिस्टम भी चलती है जहाँ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटीज़ को इंडाउमेंट्स देते हैं। एक एग्जांपल, कुछ साल पहले रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $300 मिलियन दिए थे सिर्फ एक लाइब्रेरी बनाने के लिए। सो अमेरिका में फंडिंग इस हिसाब से है कि अगर आप में वाकई मेरिट है तो आप बिना ट्यूशन फीस और बिना लिविंग एक्सपेंसेस के भी पढ़ सकते हैं अमेरिका में। लेकिन मेरिट बेसिकली बहुत ही रिलेटिव टर्म है। सो टू गेट अ स्कॉलरशिप लाइक दैट, जहां आपका जीरो ट्यूशन, जीरो लिविंग एक्सपेंसेस इफ यू आर लिविंग ऑन कैंपस, सबसे पहले यू विल हैव टू हैव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन योर ग्रेड 12 ईयर। उसके बाद you will have to have a very very good performance in reasoning tests like the SAT or the ACT. फिर आपकी प्रोफाइल बहुत वेल राउंडेड होनी चाहिए। सिर्फ अच्छे स्टूडेंट नहीं ढूंढ रहे हैं वो, they are looking for young people who have demonstrated ability in community participation, community leadership, academic leadership. They are looking for people who have won awards, who have shown achievements, people who have been pioneers in doing something new within their age group. So एक बहुत अच्छी वेल राउंडेड प्रोफाइल होनी चाहिए। और फोर्थली, आपको एक कॉलेज ऐसे लिखना पड़ेगा, उसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपने आप के बारे में आप एक यूनिवर्सिटी को बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी को समझा रहे हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा फिट क्यों हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल आप फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। आप फुल राइड, जहाँ पे आपको ना ट्यूशन ना लिविंग एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, वो भी आप ले सकते हैं। पार्शियल ट्यूशन स्कॉलरशिप्स भी बहुत हैं। अकॉर्डिंग टू मेरिट आपको 80% वेवर मिल सकता है ट्यूशन में,
60, 70, 50% वेवर भी मिल सकता है आपके ट्यूशन में. सो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं यूएस में. दूसरे देशों में, फॉर इंस्टेंस लाइक द यूके, scholarships for undergraduates are severely limited. लेकिन कई सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक द शेवनिंग स्कॉलरशिप्स फॉर इंस्टेंस, जहां आप compete करके अगर आप जीत जाते हो तो आपको यूके में पढ़ने के लिए भी कोई पैसे नहीं चाहिए, यहाँ तक कि प्लेन फेयर भी नहीं चाहिए. बाकी के देशों में जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स इतनी नहीं है लेकिन इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप्स हैं. But of course, you cannot compare them to the institutional scholarships available in the United States. So you can get up to 25 to 50% off on your tuition fees via a scholarship in countries like Canada, Australia, and also New Zealand. Got it, got it. तो सर एक पूछूंगा, क्या क्या सर्विसेज आपकी कंपनी ऑफर कर रही है बच्चों के लिए? जी, हमारी end-to-end services हैं. We believe in a philosophy called 360. एक स्टूडेंट की जो भी नीड्स हैं, from deciding whether or not he wants to study abroad, to actually choosing a destination, choosing universities, हम लोग आपको unlimited options देते हैं हर चीज़ में. After that comes test prep. आपको TOEFL, IELTS, SAT, GRE, GMAT करना है, वो सारा हमारे यहाँ उसकी instruction classes available हैं. Then admissions services, getting admitted to multiple universities. उसके बाद visa applications, financial planning, financial advice. Once you get your visa, travel advice. और एक बार आप जब पढ़ना चालू कर देते हैं, then we go into pastoral care. Okay. Pastoral care यानी कि making sure that a student who has started his studies abroad, everything is okay with him. क्योंकि बाहर जाके एडजस्टमेंट, कल्चर शॉक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इवन थिंग्स लाइक मिसिंग योर फैमिलीज. सो pastoral care overall looks after the mental health of a student once he starts studying abroad. So वहाँ तक हम लोग करते हैं. In fact, once you start studying abroad, if you've gone through us, we keep in touch with you for at least 2 years and check up on you regularly just to see if everything is okay. That's really great. So thank you सर, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन आई होप, मैं इतने दिन से एजुकेशन में हूँ, मुझे भी नहीं पता था एंड शायद आप लोग को भी नहीं पता होगा. और ज़्यादा डिटेल जानना होगा तो इस टीम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना डिटेल आप नीचे दे दीजिए. और ये आपको बहुत जेन्युइनली, बिकॉज ये कई सालों से इस फील्ड में है, आपको देंगे और इन्फॉर्मेशन सटीक होगा. अभी आपने जो इन्फॉर्मेशन लिया होगा, अगर आप यहाँ से नहीं ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से भी जाना चाहते हैं तो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था. थैंक यू सर फॉर Most दिस welcome. पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी